students. So today we will start our next exercise, that is exercise 2.6. But before that, first I would like to brief you about how to multiply any terms in decimal numbers. Okay, how you multiply decimal numbers with 10, 100, 1000. This you have done in 5th standard also, 5th and 6th. So we will just revise it how to move the decimal point. Okay, so see, whenever we have to multiply any number with 10, 100, 1000, our decimal point will shift from left to right. This you will have to remember. Like in multiplication, always point shift from left to right. Okay. Suppose I have taken one example, 1.765. Okay. This I have to multiply it with 100. Take 100. Okay. So what will be the answer? Point shift from left to right means this point. Okay. How many zeros are there? 2 zeros means it will move 2 steps. Okay. From left to right. So see this, how you will move it? 1, 2. Okay. So it will go here. So your answer will be 176.5. So in this way you have to multiply decimal number with 10, 100 and 1000. And based on the number of zeros, suppose in 10 we are having 1 zero, means point will move 1 step. In 100, 2 zeros are there, so point will move 2 steps. In 1000, 3 zeros are there, so the point will move 3 steps. Okay, so based on the number of zeros present in 10, 100, 1000, okay, the multiplicand. So based on that, your decimal point will move from left to right. Okay students, so let's start with our exercise 2.6. First question is, find 0.2 multiplied by 6. Means when you multiply 0.2 with 6, so what will be your answer? So what we do, when you were very young in the 1st or 2nd standard, you used to multiply like this, no? 0.2 multiplied by 6. Okay, but here we will use shortcut method. We will not do multiplication like this. Okay, what we do, we will multiply this number. First we ignore the decimal. Okay, whenever you are multiplying any number, so you have to ignore the decimal point for some time. Okay, तो यहाँ पे 6 2s are 12, 2 6 0 0 plus 1 1. Okay, so 12 आया. अब हमारा पॉइंट यहाँ पे है. पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक डेसिमल नंबर है ना? डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा एक नंबर है. तो फ्रॉम द राइट यू विल काउंट फॉर 1 स्टेप. ओके, सो फ्रॉम हियर इट विल गो लाइक दिस. सो योर आंसर विल बी 1.2. नाउ वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन. 2.71 into 5. Again, first we will multiply 2.71 into 5. Okay, मतलब हम पॉइंट को अभी हम इग्नोर करेंगे एंड फर्स्ट वी विल डू मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस. 5 1s are 5, 5 7s are 35, 3 carry, 5 2s are 10, 11 12 13. So your answer is 1355. Now you have to put the decimal point. After decimal point, 2 numbers are there, so we will put decimal point after 2 numbers from the right side. Okay, from the right. When you go from right to left, so you have to move 2 steps to put the point. So यहाँ से अगर मैं move किया 1 step and 2 step, कहाँ पे आया? 13.55. So in this way you have to solve question number 1. Okay. Okay students, now we will see question number 2. Find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. Okay, so that you know that whenever we do word problems, so first we will have to write given to find. So in given what you will write? Length of rectangle and breadth of rectangle.
To find area of rectangle, that you will write by your own. We will see solution part. So area, we have to find area. So we will put the formula of area of rectangle is equals to length into breadth. Length into breadth is the formula to calculate area of rectangle. So our length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. So we will follow the same steps which we have done in the question number 1. पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आंसर में पॉइंट पुट करेंगे. ओके, सो 3 7s are 21 का 1, 2 कैरी, 3 5s are 15, 16, 17, 171. Okay, now see, after point one number is there, so from the right you will move one step towards left, है ना. यहाँ से हम इधर आएंगे तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is your answer number 2. Okay students, now we will see question number 3. Find. Okay, find 1.3 multiply by 10. That I told you in the beginning only. मीन्स यहाँ पे हम क्या देखना है, कितने जीरोज हैं. हमें अपने पॉइंट को उतने स्टेप मूव करना है. ओके, फ्रॉम विच डायरेक्शन? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो सी 1.3 into 10. सो दिस पॉइंट विल मूव वन स्टेप हियर, है ना. ये यहाँ पे ऐसे मूव करें तो क्या आंसर आएगा हमारा? 13.0. 13.0 कि हमारा ये 0 है. हमारा पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इधर मूव करेगा. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स. ओके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, है ना. क्वेश्चन नंबर 2 में व्हेन वी वर फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी वर मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो हमने पहले क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने पॉइंट राइट से लेकर के पुट किया था. बट अगर हमको किसी भी नंबर डेसिमल को 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ ओके मल्टीप्लाई करना है तो वी आर जस्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर merely shifting the decimal. Okay, so in this case you have to shift the decimal from left to right. Okay, मल्टीप्लिकेशन में हम राइट से देखते हैं लगाने के लिए पॉइंट, बट जब ऐसे सम्स आते हैं 1.3 into 10 तो वहां पे लेफ्ट टू राइट पॉइंट हमारा शिफ्ट करता है. ओके, नाउ सी फिफ्थ वन 31.1. यहाँ पे 2 0 है. सो फॉर योर कन्वीनियंस व्हाट यू डू, यहाँ पे हम 2 0 ऐसे लगा लेते हैं, है ना, फॉर योर कन्वीनियंस. नाउ यू सी 2 zeros are there, so we will move our this decimal point 2 steps. Okay, 1 and 2. So what now? What will be your answer? 31 1 0.0. देखो 2 स्टेप मूव किया ना, तो your answer will be 3110.0. Now we will see 12th one where we have to multiply the decimal number with 1000. Here 3 zeros are there, तो हम कितने मूव करें, कितने स्टेप्स? 3 steps. 0.03. अगेन फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन पुट 0. कितने 0 यहाँ पे? 3. तो यहाँ पे तुम 0 3 लगा लो, so that it will be easy for you to shift the points. Okay, now see 1 2 3. so your point will come here. 3 0 0 3 0.00. or simply what you can write 30.0. ओके, 30.0. 3 से पहले जो 0 होते हैं इसमें वैल्यू नहीं होती है, तो वी कैन राइट 30.0. सो स्टूडेंट्स, other questions are like this only, so you will do by yourself. Now question number 4. A two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. अगर 1 लीटर पेट्रोल में टू व्हीलर 55.3 किलोमीटर कवर करता है तो 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वो कितना कवर करेगा. सो हम क्या करेंगे,
एक का दिया हुआ है, हमको निकालना है मल्टीपल, है ना, 1 लीटर का दिया हुआ है, हमें निकालना है 10 लीटर्स का। तो वी विल मल्टीप्लाई 55.3 विद 10। सो फर्स्ट वी विल राइट गिवन क्या है कि इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 2 व्हीलर कवर्स 55.3 किलोमीटर। ओके, देन टू फाइंड the distance covered in 10 liters of petrol. Okay, then solution में तुम क्या करोगे, 55.3 multiply by 10, then you will write the answer. Okay. Okay students, now we will see question number 5. Find 2.5 into 0.3. So in question number 1 क्या था वहाँ पे कि एक डेसिमल पॉइंट था और एक हमारा होल नंबर था, बट हियर वी आर हैविंग both the decimal number as multiplier and multiplicand. Okay, so what you will do, again you will first multiply as you do. Okay, normally what you do in multiplication that you have to do. So suppose पहले क्या किया 25 into 03, ठीक है, इसको ऐसे ले सकते हैं 3 5 15 3 2 6 1 7 0 and 0. So your answer will be 0 5 7 and 0. Okay, अब 0 7 5 आया है हमारा, अब हमारा डेसिमल देखना है हमको. ओके, तो when you see in the multiplicand यहाँ पे क्या है 5 है, पॉइंट के बाद एक नंबर है और मल्टीप्लाई में पॉइंट के बाद एक नंबर है, मीन्स टोटल कितने हैं 1 + 1 2, मीन्स टोटल 2 डेसिमल प्लेसेस हमको शिफ्ट करने हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस. ओके, एक मल्टीप्लायर में है और एक मल्टीप्लिकेंड में है. 2 डेसिमल प्लेसेस हम शिफ्ट करेंगे कहाँ से, राइट टू लेफ्ट में. ठीक है, जब भी 10 100 1000 से हम किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करता है. लेकिन इस केस में हम जब पॉइंट हमको लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हैं. तो यहाँ पे 2 नंबर्स है तो मतलब 2 स्टेप्स. ओके, तो यहाँ से 1 and 2. सो योर आंसर विल बी 0.75. 0.75. Okay, now we will see 6th one. Here also you will multiply 11.2 and 0.15. See, 11.2 0.15 multiply किया, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 1 6, 5 1s are 5. Now 2 1 1 0 0 0. ओके, हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, फिर 0 6 + 2 8 5 + 1 6 1 और यहाँ पे 0. ठीक है, नाउ सी आफ्टर पॉइंट 1 नंबर इज देयर और यहाँ पे कितना है पॉइंट के बाद 2. तो इन टोटल कितने नंबर हो गए हमारे, ये 2 और ये 1 1 + 2 कितने हो गए 3 डेसिमल प्लेसेस वी विल शिफ्ट. ओके, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे 1 2 3. ओके, सो आवर आंसर विल बी 1.680. ओके, सो इन दिस वे यू विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Students, so in the previous exercise you have seen how to multiply any decimal number with whole number, 10 and with the decimal number. Now in next exercise, that is exercise 2.7, we will look how to divide any decimal number by 100, 10, 1000 or whole number and by the between 2 decimal number only. Okay, so first we will see division by 10, 100 and 1000. Whenever you divide any decimal number with 10, 100 and 1000, so your decimal point will move from right to left. In multiplication पॉइंट हम कहाँ मूव करते थे, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट. ओके, सपोज 1.31 डिवाइडेड बाय 10. ओके, सो यहाँ पे
10 है मीन्स वी विल शिफ्ट दिस, वी विल मूव पॉइंट 1 स्टेप ओनली. ओके, तो यहाँ से हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे मीन्स ये कहा जाएगा इस तरफ. तो क्या आ जाएगा हमारा 0.131. ओके, सो दिस विल बी योर आंसर फॉर division by 10, 100 and 1000. Now we will see for whole number. When you divide any decimal number by whole number, so what will be your answer? Suppose you 31.2 is divided by 2. Okay, तो हम क्या करेंगे पहले 31.2 ये हमारा कितना है यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं. ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बिकॉज हम इसको जब चेंज करते हैं है ना, जब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो थोड़ा दूसरा नंबर होता है दैट इज रेसिप्रोकेटेड. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर. अब वी विल डिवाइड 2 1s 2, 2 5s 10, 2 6s 12. Okay, now 156/10 और you can say 156 divided by 10. तो पॉइंट कहाँ जाएगा हमारा यहाँ बीच में है ना, यहाँ पे हमारा शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. So in this way you have to solve the decimal number, division of decimal number by whole number. Okay, now we will see third one, between two decimal numbers. So how to divide two decimal numbers? Suppose 31.6 is divided by 2.2. So are they like decimals? Yes, they are like decimals because after decimal one number is there in division also, in divisor and dividend. Okay, तो अब देखो हम कैसे करेंगे सॉल्व. 31.6 डिवाइडेड बाय 2.2. ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, ठीक है, क्यों अगर हम इसको पॉइंट को हटाना है तो इसको किधर मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मल्टीप्लिकेशन में कैसे मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना, तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा और उसी 10 से हम नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो योर आंसर विल बी 3316/22. नाउ यू कैन सॉल्व इट. 2 11s 2 1s 2, 2 5s 2 8s. Okay, so you can now further solve 158/11. Okay, so in this way you have to solve any two like decimals. Okay, you have to divide into two like decimals. But अगर suppose यहाँ पे 3.60 होता, okay, यहाँ पे 3.62 होता, 31.62 डिवाइड बाय 2.2. अब लाइक टर्म्स है नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे लाइक टर्म्स में उसको कन्वर्ट करेंगे. कैसे, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 31.62 डिवाइडेड बाय 2.20 है ना. जैसे हम लाइक टर्म्स कर रहे थे 2.3 और 4 एक्सरसाइज में, बिल्कुल वैसे हमें यहाँ पे भी करना है ना. 2 अगर यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 2 के बाद एक 0 इंक्लूड करेंगे टू मेक बोथ द दिस डेसिमल नंबर्स लाइक. ओके, फिर उसके बाद यू हैव टू परफॉर्म दिस ओनली. यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके यू कैन रिमूव द पॉइंट एंड यू कैन सॉल्व. ओके, okay students, so let's start exercise 2.7. first question is find 0.4 divided by 2 means you have to divide a decimal number with whole number. so what we were doing, अगर 0.4 है मतलब 4 की पॉइंट पर कितना नंबर है 1 है तो we can put divided by 10. so यहाँ से पॉइंट हट जाएगा divided by 2. तो हम कैसे लिख सकते हैं 4/10 डिवाइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में और 2 हमारा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट 1/2 है ना. 2 होल नंबर है दैट मीन्स इस डिनोमिनेटर इज 1, उसको रेसिप्रोकेट करेंगे उल्टा करेंगे तो 1/2. नाउ 2 1s 2, 2 2s 4, 2 1s 2, 2 5s 10 है ना. 2 के टेबल में 4 आता है 2 2s. अब वापस यहाँ पे 2 बचे, यहाँ पे 10 है तो 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 5s. अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 into 1
है ना, और 5 into 1, so 1/5, 1/5, ठीक है। अब उसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.2, 1/5 हमारा कैसे होता है, देखो 1 और ये 5, 1 डिवाइड में 0 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट मतलब यहाँ पे 0, तो 0.2, ओके। सो योर आंसर विल बी 0.2 फॉर द फर्स्ट पार्ट. नाउ सी थर्ड वन. Here also 248 डिवाइडेड बाय 100. 100 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर्स है, तो डिवाइडेड बाय 4. 248 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/4, है ना। डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 4 विल रेसिप्रोकेट. अब इसको डिवाइड करते हैं. 4 1 जा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, फिर 4 1 जा 4, 5 6, 4 से जाएगा नहीं जाएगा, 2 से देखते हैं. 2 3 जा 2, 1 जा, ओके, और ये 250 जा. आंसर इज 31/50, ठीक है. अब इसको डेसिमल फॉर्म में तुम कैसे लोगे, बिल्कुल ऐसे डिवाइड करके यू हैव टू फाइंड द आंसर इन डेसिमल फॉर्मेट. ओके, आई होप यू नो हाउ टू सॉल्व इट. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड 4.8 डिवाइडेड बाय 10. डिवाइडेड बाय 10 है तो बेटा हमारा पॉइंट कैसे शिफ्ट होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सी 4.8 डिवाइडेड बाय 10, तो राइट टू लेफ्ट में शिफ्ट होने कितना होगा, 1 स्टेप, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट. ओके, तो कितना आएगा आंसर, 0.48 है ना. अगर सपोज यहाँ पे तुम्हारा बड़ा नंबर होता है ना, सपोज यहाँ पे 0.48 पहले से होता, तुमको सॉल्व करना था, तो तुम क्या कर सकते थे कि 0 है तो यहाँ पे फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन पुट 0 हियर. ओके, एक 0 है तो तुम नंबर के आगे एक 0 लगा लो. अब तुम जब इसको शिफ्ट करोगे तो यू विल बी एबल टू नो कि हाँ 0.48 यू हैव टू राइट. ओके, सो इन दिस वे यू विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सब में तुम्हें बस वही करना है, 1 स्टेप तुमको राइट टू लेफ्ट पॉइंट को शिफ्ट करना है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड. क्वेश्चन नंबर 2 में वी वर डिवाइडिंग डेसिमल नंबर विद 10. हियर वी विल डिवाइड डेसिमल नंबर विद 100. सो अब क्या है, यहाँ पे 2 0 है तो मैं 2 के आगे 2 0 लगा देती हूँ. 2.7 डिवाइडेड बाय 100. ओके, ना सी 2 0 है. अब हम इसको राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे. 1 2 पॉइंट कहाँ आ गया, इधर. आंसर विल बी 0.027. सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें सारे क्वेश्चंस तुमको इस तरह से सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यू हैव टू डिवाइड डेसिमल नंबर्स विद 1000, है ना. यहाँ पे 10 था, एक 0 था, तो वी वर मूविंग डेसिमल 1 स्टेप. यहाँ पे 2 था तो हम 2 स्टेप मूव कर रहे थे. अब 3 0 है तो 3 स्टेप. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 यू विल डू बाय योरसेल्फ ओनली. Okay, students, now you will see question number 5. Find 7 divided by 3.5. Okay, if you will see carefully, means 7 है, इसमें पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, that means they both are unlike terms. तो हम पहले क्या करते हैं, 7 divided by 3.5. पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 7 वी कैन राइट 7 as 7.0, है ना. तो 7.0, अब दोनों के क्या है, दोनों राइट टर्म्स हो गए, बिकॉज आफ्टर डेसिमल 1 नंबर इज देयर. ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 1 नंबर इज देयर. सो योर आंसर विल बी 7/35. नाउ यू कैन डिवाइड 7 1 जा 7 5 जा. आंसर इज 1/5. और इन डेसिमल फॉर्म इट इज 0.2. Okay, so this is the first part. Now see second one. Again you will write like that only. इस डिवीजन फॉर्म में लिखना है इसको 0.7. अब यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
7 के साथ 0 पुट कर देंगे, है ना। अब दोनों लाइक टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। 100 मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3094 अपॉन 70। ओके, नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस. So in this way you will have to solve remaining question of question number 5. Okay, so now sixth question. A vehicle covers a distance of 43.2 किलोमीटर in 2.4 liters of petrol. एक व्हीकल है जो 43.2 किलोमीटर कवर करती है, कितने में? 2.4 लीटर्स में. तो 1 लीटर में कितना करेगी, है ना. तो ये बिल्कुल रिवर्स हुआ. जो हमने 2.6 में देखा था क्वेश्चन, वहाँ पे 1 का दिया था, मल्टीपल का निकालना था. यहाँ पे मल्टीपल का दिया हुआ है, तुमको 1 का निकालना है ना. तो क्या करेंगे, 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4. बाकी गिवन टू फाइनल सॉल्यूशन दैट यू विल डू बाय योरसेल्फ. So with this, your chapter number 2, that is fraction and decimal, is finished. You just prepare it for your unit test, and if you are having any doubt, you can ask me in 6 to 7 timings. Okay, thank you.